आई वॉज टेलिंग यू लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था log 1 रादर log 1 to any base is always 0, बट हम बेस अभी तो 10 ही ले रहे हैं. देन log 10 to the base 10 is 1. log अभी देखना, अभी ठीक दिख रहा है, ये क्लियर दिख रहा है बच्चे? यस सर. बिल्कुल क्लियर है ना अभी? यस या अभी भी ब्लर है थोड़ा सा? नो सर, ठीक है. ठीक है. log 100 to the base 10 is 2. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था. एक तो ये प्रॉपर्टी समझ लें, इफ वी हैव log a to the base a, it is always 1, and log 1 to any base is always 0. ठीक है, कंडीशन वही है, ये a की हमने कंडीशन पढ़ी थी कि a should not be equal to 1 and a should be greater than 0, मतलब that condition has to be implemented. For log 10 to the log 100 to the base 10 is 2. Suppose I have got log 10 की power 7 to the base 10, it is always equal to 7, right? और लास्ट टाइम मैंने बताया था इट कैन बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको पूछ लेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ log लेट्स से 1 2 3 4 5 base 10. ठीक है, तो इट इज बेसिकली 10 की पावर 5, तो इट विल बी 5 आंसर. यहाँ पे 1 को 10 की पावर 0 लिखेंगे, 0 आएगा. ये 10 की पावर 1 है, 1 आ गया. 10 की पावर 2 है, 2 आ गया, एंड सो ऑन. ठीक है, आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंडेसा. मेंडेसा ऑफ ए लॉगरिथम. इफ यू रिमेंबर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पढ़ा था एनी पॉजिटिव रियल नंबर, लेट्स से इट इज के, कैन बी पुट अप इन द फॉर्म m into 10 की पावर p, वेयर जो p है इट इज एनी इंटीजर and m it lies between 1 to 10. 1 is always less than m is less than 10. थोड़ी सी एग्जांपल कर लेते हैं. सपोज एक नंबर है 479.82, तो ये मेरा नंबर है k, दिस इज k. इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 4.7982 इंटू 10 की पावर 2. इज दिस पॉइंट क्लियर? ये मेरा नंबर है k. यस यस, Yes, राघव sir. यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes, sir. So if k is equal to 0, sir, then how can we represent it in this form, sir? बेटा जी मैंने अभी बोला, राघव यू शुड लिसन इट केयरफुली. मैंने अभी बोला k is any positive real number, then as per you Okay, sir. is 0 a positive real number? Yes, Raghav, I 0 didn't is get it. Okay. 0 is Yes, positive or negative? No, you answer, Raghav. 0 is positive or negative? so it is neither positive nor negative. 0 is even or odd? So it is even number. It is even number and it is neither negative nor positive. Correct. Now, let me take another example. 395. Let me put 0 here and decimal here. Now this is k, right? Can I write it in this form? 3.95 into 10 की power how much? 1 2 minus 2, right? So if the number is, let's say 4.17, can I write it 4.17 into 10 की power 0, right? So any positive real number, it can be shown
एज m इंटू 10 की पावर p, ये m आ गया, और m मैंने बताया इट विल लाई बिटवीन 1 to 10, 1 और 10 के बीच में आएगा, 1 और 10 के बीच में आएगा। और ये जो p है इट कैन बी एनी इंटीजर, ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। k में है इट शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया लॉग हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स का ही लिया जाएगा। ये इंटीजर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। I am writing it again. K, I have taken m into 10 की power p. Now I am taking log on both sides. So log k is equal to log of m into 10 की power p. You have studied one law, na? That is log m into n. It is log m plus log n. So it is log m plus log 10 की power p. Again, I am going to use one result here, the one law of logarithm, log m की power n. It is n log m. So log k is equal to log m plus p log 10. अच्छा, now let me know, is it clear now? Is it legible? पढ़ा जा रहा है पूरा? Yes, sir. Right. So I told you earlier also, we are dealing here with base 10. इसमें भी base 10 है, base 10 है, base 10 है। तो ये बन गया log k is equal to log m plus p log 10 to the base 10. It is 1. Clear? What I mean to say is log of, I repeat, log of any positive real number, log of any positive real number can be shown as sum of two parts. ठीक है? तो but before that, let me do one thing. P is an integer that you know, right? Now, I gave you another condition that m always lies between 1 and 10. Right? If I take log of each, I will get log 1 less than log m less than log 10. Base is 10. हाँ जी, log 1 will become 0. Am I clear? Is less than Yes, log sir. 10 to the base 10 is 1. So another result I got is कि if 1 is less than m is less than 10, then 0 is less than log m is less than 1. So coming to this point, coming back to this point, I am writing that log of a positive real number, let me have one sheet. So I am writing, and I will show you, I will take the previous one also in image. I am writing logarithm. Logarithm in short is written as log, ठीक है? Logarithm of a positive real number right, consists of two parts. Number one, हमने लिखा, यहाँ पे देखें, I will keep this in frame now. Log k, where k is any positive real number, is log m plus p. So p is integer. So we can write it in two parts. Log of any positive real number, it can be written in two parts, as sum of two parts rather. First one is p. P is any integer. P is any integer. It may be positive
it can be negative or it can be 0. And second part is log of m. और हमने ये देखे प्रूव किया कि log m lies between 0 and 1. I am writing the same thing. Log, second part is log of m such that 0 is less than log m is less than 1. So a number which lies between 0 and 1 will always be in decimal. क्योंकि 0 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है, दो इंटीजर के बीच में जो नंबर आएगा that can be shown in decimal, rather that मतलब can be represented in decimal form, है ना, 0.1, 0.2, 0.46, ठीक है. That is the reason we say that this part is the decimal part. ये जो पार्ट है इसको हम डेसिमल पार्ट भी बोलते हैं. And another name of this decimal part is Mantissa. Mantissa. M-A-N-T-I-S-S. T-I-S-S है Mantissa. तो हमने दो वर्ड सीखने थे, कैरेक्टरिस्टिक एक Mantissa. हाँ जी हाँ जी. तो ये जो सर टर्म्स है सर हमें वो याद रहनी चाहिए सर. क्या याद रहना चाहिए? ये जो टर्म्स आप पढ़ा रहे हो सर, जैसे मैंटीसा हो गया सब, ये बिल्कुल याद हो जाएंगे जी जब क्वेश्चंस आएंगे ना. क्वेश्चन आएगा ही ऐसे, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर, फाइंड द मैंटीसा ऑफ द नंबर. ठीक है, तो आप याद नहीं भी करेंगे, खुद ब खुद याद हो जाएंगे. डोंट वरी अबाउट दिस. Sir, one doubt. हाँ जी, स्पीक आउट. Sir, how come log of m always is between 0 and 1? आई एम नॉट सेइंग you have to define m here na. What was m? I will come back to the previous sheet. I said log m is always 0 and 1. Why? अब ये जो स्टोरी है ये यहां से शुरू हुई थी, प्लीज देखना, कि any positive real number can be shown as product of m into 10 की power p. And what was m? m lies between 1 and 10. Yes, sir. ठीक है. So if 1 is less than m is less than 10, आप log ले लो, log of each term. Log 1 is less than log m is less than log 10. Clear? Log 1 is what? 0 is less than log Excuse m. me sir. Okay, yes, sir. पहले इसकी क्वेरी हो जाने दो. I will come to you. Is less than 1. Is my point clear? So if I say log m is, let me come to this part. If I say 0 is less than log m is less than 1, that means if I say log m lies between 0 and 1, I have to define m also. Ki m lies between 1 and 10. Is my point clear? If m lies between 1 and 10, log m will always lie between 0 and 1. Rather I said कि log of any positive real number, it consists of two parts, integer plus log m. Integer can be anything, and this log m always lies between 0 and 1. Yes, next, who wants to ask? यस सर. सर m सर 10 से ग्रेटर भी हो सकता है? नहीं जी नहीं, हो ही नहीं सकता ना. आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, 10 से कैसे ग्रेटर होगा? आप कोई नंबर बताओ. देखो m क्या था, अब मुझे वापिस आना पड़ेगा यहाँ पे. ओके सर समझ गया सर. सर फिर वो 10 की पावर हो जाएगी सर? बिल्कुल जी, अगर होगा तो 10 की पावर में आ जाएगा ना. यस सर. यू गॉट द पॉइंट ना. ठीक है. सर. Any other doubt in anyone's mind? Please ask. Don't hesitate when No, you have sir. to ask. Sure. Should I proceed? तो मैं Sir, last हमने sir. पढ़ लिया. Yes, sir. Yes. Somebody. Raghav, you want to say? Raghav, yes, please. So can you please explain this Mantissa log study? बेटा ये जो log m है ना, जब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा इसको हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं. इस डेसिमल पार्ट का ही दूसरा नाम मेंटीसा है. ठीक है. तो ये जो मेंटीसा है इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. इज दिस पॉइंट आल्सो क्लियर?
ये मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और ये जो P है इसको हम करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ये जो P है इसको नाम दिया गया करेक्टरिस्टिक। और ये जो करेक्टरिस्टिक है ये नेगेटिव हो सकती है। तो राघव एक बार आपने क्वेश्चन किया था ना जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, तो उसमें मैं बता रहा था क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पॉजिटिव रियल नंबर की ली जाती है, वो तो नेगेटिव नहीं ले सकते। लेकिन जब हम लॉग लेते हैं किसी नंबर का, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक करेक्टरिस्टिक एक मेंटीसा। यस, करेक्टरिस्टिक कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, जीरो भी। लेकिन ये जो मेंटीसा है इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये चीज क्लियर होगी। तो Yes, आज sir. जो Sir, एक सबसे एग्जांपल इंपॉर्टेंट से चीज है, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, बट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाली है कि जब भी हम लॉग लेते हैं किसी नंबर का, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इट इज टेकन एज सम ऑफ टू पार्ट्स। वन इज p विच इज एन इंटीजर प्लस log m and that log m always lies between 0 and 1, so it will always be positive. तो पहले आज हम सिर्फ करेक्टरिस्टिक करेंगे। मेंटीसा के लिए हमें लॉग टेबल्स की हेल्प लेनी है। तो मैं करेक्टरिस्टिक दो ढंग से अब बता देता हूं। सपोज क्वेश्चन आता है, फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए नंबर। लेट मी टेक सम एग्जांपल। सपोज क्वेश्चन है, अच्छा अब जब करेक्टरिस्टिक लेंगे हम, तो नेचुरल है कि हम लॉग ऑफ द नंबर की ले रहे हैं। सिंपल नंबर की करेक्टरिस्टिक नहीं होती है। जब किसी नंबर का लॉग दिया है, मैं फिर से बता दूं, हमने पढ़ा कि log of k, where k is some positive real number, it can be represented as p plus log m। ठीक है, सो p is called the characteristic। तो characteristic कब बनेगी? जब हमें किसी नंबर का log दिया हुआ है, और किस नंबर का log होगा? पॉजिटिव रियल नंबर का होगा। ठीक है, तो लेट मी राइट ए क्वेश्चन हियर। राइट characteristic, I am writing it in short now. Ch means characteristic, right? Characteristic of the logarithm of following numbers। ठीक है, तो जब भी करेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली नंबर जो होगा लॉग ऑफ सम नंबर होगा, और वो जो सम नंबर k है दैट विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। सपोज मैं एक नंबर लेता हूं 2315.4। let me take another number 0.025138। let me take some other number, let's say 0.00123। let me take another number 5.78, then 0.00014। let's say करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का जो पहला तरीका है वो है कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। ये क्या बनेगा? 2.3154 इंटू 10 की पावर कितना? 3। एम आई क्लियर? पॉइंट क्लियर? यस सर। इसकी करेक्टरिस्टिक जो आ गई वो 3 आ गई जी। कैन यू राइट इट्स करेक्टरिस्टिक इज 3। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, क्या आएगा? 2.5138 इंटू 10 की पावर कितने? -2 -2। तो -2 is the characteristic, right? Let me write this in the standard form। 1.23 into 10 की पावर कितना आ गया? 123 -3। -3 is the characteristic। Here it is 5.78। it can be written as 5.78 into 10 की power 0। so 0 is the characteristic। ठीक है, here it is 1.4 into 10 की power 1 2 3 4 -4 is the characteristic।
दिस इज द वन वे ऑफ फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। देयर इज अनदर वे, अगर किसी बच्चे को कभी यहाँ प्रॉब्लम आ जाए तो एक और तरीका है, बट वो हम 2 स्टेप्स में कर रहे हैं। सपोज यही नंबर ले रहा हूं मैं 2315.4। देखें, अगर डेसिमल के पहले, डेसिमल के इमीडिएट पहले 0 नहीं है, ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं हम डेसिमल पार्ट। आप इंटेग्रल पार्ट में देखें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट है। सो कैरेक्टरिस्टिक इज 4 - 1, कैरेक्टरिस्टिक इज 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। एम आई क्लियर? ये बात समझ आ गई? आपने इंटेग्रल पार्ट के डिजिट्स काउंट करने हैं, -1 करना है, प्रोवाइडेड डेसिमल के इमीडिएट पहले 0 नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है नंबर 0.00 0.09 ऐसा नंबर नहीं है। तो इस मेथड से अगर मैं इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाहूं इसकी, तो कितनी आएगी? हाउ मेनी डिजिट्स इंटेग्रल पार्ट हैज? 1। So 1 - 1 is 0. 0 is the characteristic. Are you getting my point? एक तो वे ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का, ठीक है। दूसरा तरीका है आप इंटेग्रल पार्ट के डिजिट्स काउंट करो और -1 कर दो। सपोज मुझे कैरेक्टरिस्टिक ढूंढनी है 457.83, तो कितने डिजिट्स हैं? 3। कैरेक्टरिस्टिक आएगी 3 - 1 दैट इज 2। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लाते हैं इस नंबर को, ये आएगा 4.5783 इंटू 10 की पावर 2 ही आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 ही आएगा इस केस में भी। सपोज आई वांट टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेट्स से 1 2 3 4 5.67, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा तो क्या आएगा? 1.23456 इंटू 10 की पावर कितना? 4 10 की पावर 1 2 3 4 Yes, 4 sir, आएगा। नहीं 4. तो मैंने लिखा 1 पॉइंट, सॉरी 1 2 3 4 नहीं आएगा, दोबारा चेक करें जरा। सर 4 ही आएगा। नंबर इज सर 4 आएगा 1, सर। सॉरी 4, ठीक है, यू आर करेक्ट। तो 4 इज द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मैं आई वाज इंटरमिक्सिंग द टू वेज। इसमें डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 - 1 4 इज द कैरेक्टरिस्टिक, so here the characteristic is 4. Is this point clear? ठीक है। Now coming to the part when characteristic is not positive. Suppose number is 0.000437, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा तो बनेगा 4.37 इंटू 10 की पावर -4। अगर ऐसा नंबर हो तो जो दूसरा वे है कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का, वो कहता है यू काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल, ठीक है। दैट इज व्हेन द इंटेग्रल पार्ट इज नॉट एग्जैक्टली 0। यहां इंटेग्रल पार्ट 0 है, अगर 0 नहीं है तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं, -1 करते हैं। अगर इंटेग्रल पार्ट एग्जैक्टली 0 है, काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल। कितने जीरोस हैं? 3। कितने जीरोस हैं? 3 +1 with the negative sign is characteristic, ठीक है। Let me try one more question. Suppose it is 0.456। अच्छा, इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो क्या लिखते हैं? इंटू 10 की पावर -1, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई -1। अब इंटेग्रल पार्ट 0 है, एग्जैक्टली 0 है। अब मैं दूसरे वे से कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे वो बता रहा हूं। डेसिमल के इमीडिएट बाद कितने जीरोस है वो काउंट करूंगा। कितने जीरोस है? नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है। दैट मींस नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल पार्ट इज 0, कोई भी जीरो नहीं है। दैट मींस नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल पार्ट इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल इज 0, +1 with the negative sign is the characteristic. So these are the two ways by which we can find the characteristic. So anyone can pitch in.
देखते हैं हु विल बी द फर्स्ट। कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, किसी भी तरह से बता दें। सपोज Yes, द sir. नंबर इज 4 7 3 2 5.6। कैरेक्टरिस्टिक सर 4 Sir, 10 to the power 4. 4। 4 ये कैरेक्टरिस्टिक है जी। 0.012 So -2. सर -2 -2 sir, -2 है ना। नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल इज 1 +1 विद नेगेटिव साइन। अच्छा, लेट्स से द नंबर इज एग्जैक्टली 3। सर 0 Sir, 0. 0 यस, इट इज 3.0 इंटू 10 की पावर 0, तो कैरेक्टरिस्टिक इज 0। ठीक है, सो 4 1 2 0.3 कैरेक्टरिस्टिक। सर 3 Sir, 3. नहीं, माइनस नहीं, माइनस नहीं, Plus minus 3. 1 sir. +3 सर। मैंने बताया था इधर शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर प्लस आएगी। या देखो इंटेग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, 4 -1 3 इज द कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है जी। तो फॉर नेक्स्ट पार्ट आई नीड द लॉग टेबल, सो नेक्स्ट टाइम यू प्लीज गेट रेडी विद द लॉग टेबल्स। ठीक है, तो लॉग टेबल से देखना सीखेंगे हम कि लॉग कैसे देखते हैं। एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू द एंटी लॉग पार्ट, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे कि सपोज एक क्वेश्चन है इस टाइप का, लेट मी राइट इट हियर। सपोज एक क्वेश्चन है 473 की पावर 7/2, ठीक है, अपान का स्क्वायर रूट अपान 4.53 की पावर 1/3। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है सपोज। तो हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें हम लॉग यूज करेंगे। ठीक है, और जो लॉग टेबल्स यूज करेंगे दैट आर बेसिकली प्रिटेनिंग टू बेस 10, वो हम लास्ट पार्ट में करेंगे। तो टुडे लेट्स कीप Yes, इट sir. अप टू हियर, एंड प्लीज फॉर द नेक्स्ट क्लास यू गेट द लॉग टेबल्स